Hello, all of you. Today we are going to start ninth class, first chapter, Matter in Our Surrounding. And this chapter is represented by me, Shivangi. This is the part 1 of the chapter. Here we will study about the matter and its physical nature. मैटर क्या है, उसका फिजिकल नेचर क्या है, वो किस चीज़ से बना हुआ है, ये सारी चीज़ें आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. So let's start this chapter, matter in our surrounding. Okay. So first of all, I need to ask all of you that can you classify all these matter? This is the question, what is matter? Obviously, these all are matter. Stone, milk, this is chlorine gas, this is a soap, and this is juice, this is air balloon filled with the air. So these all are the example of matter, but can you classify these, which is solid, which is liquid, and which is gas? Please comment. Now let us go further. You have seen the matter. Now what is not matter? What is not matter? All these things are not matter, like love, hatred, moral values, thought, ideas, affection, taste, smell, etc. Anything. So can you suggest me what is matter? What is the definition of matter? After seeing these examples, this is matter, this is not matter. Okay. Now, what is definition of matter? So matter is anything which occupies space and have mass. Okay. Matter is anything which occupies space and have mass. Like in this slide, stone is occupying mass, occupying space and have mass. Like this, your milk also, balloon also, air filled in balloon, it has mass and occupies some space. But all these things, love, hatred, moral values, please think a while कि ये कोई स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं या इनके अंदर मास होता है क्या? नहीं होता है. Understand? So you can define matter as matter is anything which occupies space and have mass. Okay, so this is the basic definition of a matter. Now you got what is matter. Let us go further. What is the classification of matter? Matter, how will you classify matter? You can classify matter as on the basis of physical properties. Physical properties means melting point, boiling point, density, all these are physical properties. And on the basis of chemical properties, okay, how a substance behave chemically. So on the basis of physical properties, matter can be classified as solid, liquid, and gas. So you need to comment, you need to answer my question in the comment box that which is solid, which is gas, which is liquid in these matter. Okay, so on the basis of physical property, you can classify matter as solid, liquid, and gas. On the basis of chemical property, you can classify matter as elements, compound, and mixture. Understand? So let us go further. After seeing the classification of matter, matter is made up of particles. Now what are these particles? The particles which makes up a matter are called atoms or molecules. मैटर किससे बना हुआ है? मैटर बना हुआ है आपका एटम और मॉलिक्यूल से बना हुआ है. एटम और मॉलिक्यूल्स, या इसके बारे में आप पढ़ोगे हमारे एटम एंड मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में. ओके, फोर्थ चैप्टर में. सो जो मैटर के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिससे मैटर बना होता है, उसको हम बोलते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. ओके, व्हाट आर दी evidence which shows that matter is made up of atoms and molecules? Evidence is mixing of two kind of matter
on its own. Means you can see this means if you have two gases, so if you allow them to mix together, they can mix very well, homogeneously they can mix, एकदम से मिक्स हो जाती हैं. या आप एक शुगर ले लो या सॉल्ट ले लो, उसको पानी में डाल दो, वो भी, और उसको स्टर करो तो वो भी मिक्स हो जाते हैं, है ना. सो दिस इज एन एक्टिविटी विच शोज दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल. In this activity, what is done, that you take a beaker, you take a water in it, and add few crystals of KMnO4, potassium permanganate. Okay, potassium permanganate crystals are purple in color. After some time you will see that water become purple in color. This activity shows that matter is made up of small particles, and these small particles are very small and they are in continuous motion. This is important, they are in continuous motion. तभी तो इसमें घुल गए, आपने तो ऊपर से डाला इसको, बट आप देखो ये जो ऊपर वाला पानी है ये पूरा का पूरा पर्पल होने लग गया, और थोड़े टाइम बाद ये पूरा पानी पर्पल हो जाएगा. तो ये जो मैटर है, ये क्योंकि ये पानी भी मैटर है, ये KMnO4 भी मैटर है ना, पोटेशियम परमैंगनेट भी मैटर है, तो ये दोनों आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाते हैं, और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन. अभी मैंने आपको बताया, मिक्सिंग ऑफ टू काइंड ऑफ मैटर ऑन इट्स ओन, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन. दो तरीके के मैटर आपस में मिल जाए अपने आप, उसको हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन बोलेंगे. ओके, और डिफ्यूजन के प्रोसेस से ही हमें पता लगता है कि मैटर जो है वो पार्टिकल से बना है, और वो जो पार्टिकल हैं बहुत छोटे हैं और वो हमेशा मोशन में रहते हैं. अंडरस्टैंड? So we will study in this chapter the physical nature, not the chemical nature of matter. So we will first study about the characteristics of particle of matter. What are the characteristics of particle of matter? Matter जिन particle से बना हुआ है, वो particle की क्या property है या क्या characteristic है, वो हम देखेंगे. तो mainly हम इसमें 4 properties पढ़ेंगे, और इन चारों प्रॉपर्टी को हम एक एक एक्टिविटी से डिस्कस करेंगे. ठीक है. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो पार्टिकल होते हैं, एटम्स हो गए या मॉलिक्यूल्स हो गया, जिससे मैटर बना है, वो बहुत ही छोटे होते हैं. ओके. सेकेंड, द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. जो पार्टिकल होते हैं इनके बीच में खाली जगह होती है, स्पेस होता है. और थर्ड, द पार्टिकल ऑफ मैटर कॉन्स्टेंटली मूविंग. ये जो पार्टिकल होते हैं वो हमेशा मूवमेंट में रहते हैं. इसका मतलब उसके अंदर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है. इन पार्टिकल्स के अंदर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है. तभी तो ये मूव करते हैं, बिकॉज जो भी चीज मूव करती है उसके साथ कौन सी एनर्जी एसोसिएट होती है, काइनेटिक एनर्जी. जो चीज ठहरी रहती है उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी. ये हमेशा याद रखना. ठीक है. फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. ठीक है. पार्टिकल जो होते हैं मैटर के, वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को. ठीक है. नेक्स्ट, अब हम एक इन चारों प्रॉपर्टी में से एक एक को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे थ्रू एन एक्टिविटी. लाइक फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल. ओके. सो व्हाट एक्टिविटी वी आर गोइंग टू डू, वी विल टेक अ टेस्ट ट्यूब. In this test tube, we will take 100 ml of water and add few crystals of potassium permanganate. When you add potassium permanganate, its color become purple. Okay. Now take 10 ml of this water in another test tube, in a small test tube, and take 100 ml water again, clear water, and add this 10 ml test tube colored water in that. ठीक है. इसमें से 10 ml निकालना है, साफ पानी लेना है, उसमें ये 10 ml डाल देना है. ठीक है. अब देखो इसका कलर नहीं गया. ठीक है. जो पहली में था वही इसके दूसरे में कलर है, बट ये कलर थोड़ा लाइट हो गया है. पार्टिकल अभी भी है बट ये कलर थोड़ा लाइट हो गया. ऐसे इसमें से 10 ml निकालो, आप दूसरा टेस्ट ट्यूब लो, उसमें पानी भरो और उसके अंदर डाल दो, कलर और लाइट हो जाएगा. ऐसे ही फोर्थ में करो तो आपका कलर लाइट होता जाएगा बट कलर खत्म नहीं होगा. Okay, so if you repeat this process 5 to 6 times, this shows that a few crystals, आपने कितने डाले थे crystals, एक या दो,
of potassium permanganate can color a very large volume of water. एक या दो क्रिस्टल ने कितने ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर को कलर कर दिया. इससे क्या पता लगता है कि देयर आर मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन ईच क्रिस्टल. हर एक क्रिस्टल के अंदर छोटे 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 बहुत सारे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, मिलियंस होते हैं. अंडरस्टैंड? सो तुम सोच सकते हो कि कितना छोटा पार्टिकल होगा. ओके, सो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई जो हमने एक एक्टिविटी के थ्रू देखी. सेकेंड प्रॉपर्टी क्या थी? सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम. पार्टिकल जो होते हैं मैटर के, उनके बीच में स्पेस होता है, उनके बीच में जगह होती है. अब ये कैसे हम कह सकते हैं? इसके लिए हम एक एक्टिविटी देखते हैं. हम एक बीकर में पानी लेंगे, ठीक है, टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड उसका लेवल मार्क कर देंगे. उसका लेवल हमने मार्क कर दिया. उसके अंदर हम सॉल्ट डालेंगे 1 चम्मच, या शुगर भी डाल सकते हो आप. उसको मिला देंगे, ठीक है. जब हम सॉल्ट और शुगर डालेंगे और जब हम उसको डिसॉल्व कर देंगे पूरी तरह, तो अब आप उसका ऑब्जर्व करो, लेवल बढ़ा है या घटा है. ठीक है, आप ऑब्जर्व करोगे कि जो सॉल्ट है वो पूरी तरह डिसॉल्व हो गया है, और जो वाटर है, वाटर का लेवल है वो बढ़ा नहीं है. ठीक है, सो ये जो सॉल्ट आपने डाला ये किधर गया? बेसिकली सॉल्ट भी मैटर है, वाटर भी मैटर है. अगर आप एक मैटर के अंदर दूसरा मैटर डालोगे तो उसका लेवल बढ़ना चाहिए, अमाउंट बढ़ना चाहिए, बट नहीं, अमाउंट तो बढ़ा नहीं. तो ये जो सॉल्ट है, ये वाटर के जो पार्टिकल्स है, छोटे छोटे एटम्स या मॉलिक्यूल्स है वाटर के, ये जो सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स है, एटम है, उसके स्पेसेस में जाके बैठ गए. सो इससे क्या पता लगता है? इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं इस एक्टिविटी से कि this is because the particle of salt get into the space between the particle of water. Understand? So the particle of matter have space between them. जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है. जैसे ये सॉलिड का पार्टिकल हुआ, ठीक है, ये पार्टिकल छोटे छोटे हैं, इनके बीच में क्या होगा? स्पेस होगा. और कोई दूसरा मैटर डालोगे तो इस स्पेसों को वो फिल कर लेगा, इन स्पेसेस को वो फिल कर लेगा. Understand? So this is the whole scenario. I hope second characteristic is also clear to you people. Now, what happened? Third property. Third property क्या थी? The particles of matter are constantly moving. जो पार्टिकल है मैटर के अंदर वो हमेशा किस में रहते हैं? मूवमेंट में रहते हैं. वो किस में रहते हैं? हमेशा मूवमेंट में रहते हैं. इसके लिए आप एक एक्टिविटी कीजिए. आप अगरबत्ती तो जलाते ही हैं अपने घर में जब आप पूजा करते हैं, ठीक है. तो आप ये नोटिस कीजिए कि जो अगरबत्ती आप जब जलाते हो एक कॉर्नर में जलाते हैं, बट वो पूरे रूम में उसकी स्मेल आती है. वाई? आपने अगरबत्ती जलाई, अगरबत्ती के जो पार्टिकल्स हैं, ये जो इंसेंस स्टिक के जो पार्टिकल्स हैं, उसी जगह रहने चाहिए ना, अगर पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे तो. बट ये क्या करते हैं? ये मूव करते हैं, इसलिए ये एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं. वही डिफ्यूजन हो जाता है. इन पार्टिकल का एयर के पार्टिकल के साथ क्या हो जाता है? डिफ्यूजन हो जाता है. So this observation tell us that particles of matter are constantly moving. Okay, so what is this activity? Light an incense stick in the corner of a room. What is your observation and conclusion? The fragrance of a burning incense stick spread in the entire room very quickly tell us that the particle of matter are constantly moving. Understand? So this is the second. This is the third property. Now fourth property. What is this property? The particle of matter attract each other. जो पार्टिकल होते हैं मैटर का, वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं. इसके लिए आप क्या ले सकते हो? इसके लिए आप 3 चीज ले सकते हो. आपकी बुक में ये एक्टिविटी दे रखी है. आप इसके लिए एक रबर बैंड ले लो, ठीक है. दूसरा आप चौक ले लो और एक आयरन की रॉड ले लो. क्या बोला मैंने? रबर बैंड ले लो, चौक ले लो और आयरन की रॉड ले लो. अब आप उसमें फोर्स लगाओ. मतलब आप रबर बैंड को खींचने की कोशिश करो, चौक को तोड़ने की कोशिश करो, और जो आयरन की रॉड है, लोहे की जो रॉड है, उसको भी तोड़ने की कोशिश करो. कौन जल्दी टूट जाता है?
ऑब्वियसली रबर बैंड जल्दी टूट जाएगा। ओके, सो जो पार्टिकल होते हैं मैटर के अंदर, उनके अंदर कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहती है, मतलब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, एक ये जो पार्टिकल है वो दूसरे पार्टिकल को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये भी इसको करेगा, ये भी इसको करेगा। और इन दोनों पार्टिकल के बीच की जो फोर्स है इसको हम बोलेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ये दो एटम्स हैं, जैसे इन दोनों के बीच की जो फोर्स है उसको हम क्या बोलेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, जो कि इनको जोड़ के रखती है एक साथ। ठीक है, अब ये जो फोर्स होती है ये अलग अलग होती है, डिपेंड करता है कि आपका पार्टिकल कैसा है। आपका पार्टिकल सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। ओके, सॉलिड भी है तो किस टाइप का सॉलिड है, मेटल है, प्लास्टिक है या अमॉर्फस, मतलब डिफरेंट टाइप के मैटर पे डिपेंड करती है ये फोर्स। एग्जाम्पल, वुड मेटल में ये जो फोर्स होती है वो हाई रहती है, तो उसको तोड़ने के लिए ज्यादा आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। ऐसे चॉक, पेपर, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लेस रहेगी, इसीलिए ये इजीली क्या होते हैं, टूट जाते हैं। अंडरस्टैंड? सो ये चीज रहती है। अंडरस्टैंड? देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। जैसे ये बच्चे हैं, ठीक है, ये मिट्टी में खेल रहा है, मिट्टी में चल रहा है, ये पानी में तैर रही है, ये ऐसे ही हवा में चल रही है, ऐसे ही पार्क में चल रही है, पार्क में घूम रही है। तो दिस इज क्वेश्चन, विच इज इजियर, वॉकिंग इन सैंड, वाटर और एयर? किस में वॉक करना इजी रहेगा, सैंड में, वाटर में और एयर में? ऑब्वियसली एयर में। बिकॉज व्हाई? बिकॉज जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है पार्टिकल्स के बीच में वो सबसे ज्यादा किस में होती है, सॉलिड में होती है। उससे कम किस में होती है, लिक्विड में होती है। और उस सबसे कम होती है गैस में होती है। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज जो आपने पढ़ा है 8th क्लास में पढ़ा है सबने, कि जो सॉलिड है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल पास पास होते हैं, है ना। पास पास होने के कारण क्या होता है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है। लिक्विड में यही पार्टिकल्स जो होते हैं इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है, ठीक है, तो इनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होती है, कम होती है। और गैस में तो ये स्पेस बहुत ही ज्यादा होता है, एक पार्टिकल इधर, एक पार्टिकल इधर, एक पार्टिकल इधर। तो कहने का मतलब क्या है, जितना ज्यादा स्पेस उतनी लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अंडरस्टैंड? सो मोर स्पेस लेस अट्रैक्शन। जैसे गैस में सबसे ज्यादा स्पेस है तो इनके पार्टिकल के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ही कम है। तो इसीलिए गैस में से पास होना बहुत इजी है, ठीक है, एज कंपेयर टू सॉलिड और लिक्विड। अंडरस्टैंड? सो हैव यू अंडरस्टैंड all these four properties through activities? The particle of matter are very very small. हमने पोटेशियम परमैंगनेट को डाइल्यूट किया था बहुत बार, उस वाली एक्टिविटी से हमने देखा था। सेकेंड, द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। हमने सॉल्ट या शुगर को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया था, तो सॉल्ट जो था वाटर के अंदर जो स्पेसेस हैं उसमें जाके बैठ गया था, तो इससे पता लगा था हमें कि जो वाटर है उसके अंदर क्या है, जो पार्टिकल है उनके बीच में क्या है, स्पेस है। ऐसे ही थर्ड, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। अगरबत्ती जला दी थी एक कोने में रूम के, तो उसकी स्मेल आपको दूर तक आ रही थी। इससे पता लगता है कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर है वो हमेशा कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, और ये मूव करते हैं तो उनके साथ कोई एक एनर्जी एसोसिएट होती है जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, वन मोर थिंग, जब ये पार्टिकल मूव करते हैं तो इनके साथ क्या एसोसिएट होती है, मैंने अभी आपको बताया क्या एसोसिएट होती है, कौन सी एनर्जी एसोसिएट होती है, काइनेटिक एनर्जी एसोसिएट होती है। ठीक है, अभी जो काइनेटिक एनर्जी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। जैसे टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर बढ़ाने से, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से जो पार्टिकल है उनकी मूवमेंट भी क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, एक ठंडा खाना है और एक गर्म खाना है, किसकी स्मेल आपको जल्दी आएगी, ऑब्वियसली गर्म खाने की। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर किसका ज्यादा है, गर्म खाने का ज्यादा है, तो उसके पार्टिकल्स की मूवमेंट ज्यादा किसकी होगी, गर्म खाने की ज्यादा होगी। इसीलिए मम्मी जब किचन में खाना बनाती है तो आपको क्या आ जाती है, एकदम से स्मेल आ जाती है। इसीलिए ये चीज ध्यान रखना
कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. अंडरस्टैंड? ओके. द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. मैंने एक एक्टिविटी आपको बताई, रबर बैंड लेना है, चौक लेना है, रॉड लेना है, उनको तोड़ने की कोशिश करनी है, देखना है किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा है. ऑब्वियसली आयरन की रॉड टूटेगी नहीं, उसमें जो पार्टिकल है वो ज्यादा पास पास है, उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है. अंडरस्टैंड? सो ऑल दीज थिंग्स, ये 4 प्रॉपर्टी हमने देखी. लास्ट में हम बात करते हैं डिफ्यूजन की. मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है. डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, एक बार फिर से मैं बता रही हूँ आपको. मिक्सिंग ऑफ टू मैटर्स ऑन इट्स ओन, ये इंपॉर्टेंट है, अपने आप मिक्स होने चाहिए. फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. अब ये क्या बला है, हायर कॉन्सेंट्रेशन मतलब जहां वो चीज ज्यादा होगी और जहां वो चीज कम होगी वहां की तरफ मूव होने चाहिए. जैसे आपने एक कोने में अगरबत्ती जलाई, तो अगरबत्ती के धुएं की कॉन्सेंट्रेशन उस कोने में ज्यादा है, तो वहां से धुआं उठ के कहाँ जाएगा, जहां पे उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है, और पूरे रूम को ऑक्यूपाई कर लेगा. अंडरस्टैंड? तो डिफ्यूजन की डेफिनेशन क्या हो गई, मिक्सिंग ऑफ टू मैटर ऑन इट्स ओन फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन. और डिफ्यूजन जो होता है वो गैस गैस में हो सकता है, सॉलिड लिक्विड में हो सकता है, लिक्विड लिक्विड के अंदर डिफ्यूजन हो सकता है. ठीक है? तो डिफ्यूजन डिपेंड करता है स्टेट पे, स्टेट ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है. स्टेट ऑफ मैटर 3 तरीके की मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है वो सबसे ज्यादा किस में होता है, गैस में. गैस में सबसे ज्यादा डिफ्यूजन होगा, उसके बाद लिक्विड में, और उसके बाद सॉलिड में. ठीक है? इसका हम अभी मैं बताती हूँ, इसको आप एक एग्जांपल से, अभी आप बस ये समझ लो कि डिफ्यूजन डिपेंड अपॉन द स्टेट ऑफ मैटर. अंडरस्टैंड? In gas, the rate of diffusion is higher than in liquid, than in solid. Understand? This sequence should be learned. Second, diffusion depend करता है किस पे, टेम्परेचर पे. डिफ्यूजन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, जैसे काइनेटिक एनर्जी होती है. ठीक है? तो टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो डिफ्यूजन का रेट भी बढ़ जाएगा. ठीक है? तो डिफ्यूजन डिपेंड अपॉन टेम्परेचर. On increasing temperature, the rate of diffusion increases. Understand? जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि ठंडे खाने का जो स्मेल है वो आपको नहीं आएगा इतना जल्दी, जितना जल्दी आपको गर्म खाने का आएगा. ठीक है? क्योंकि गर्म खाने का टेम्परेचर ज्यादा है. तो हम इसको देखते हैं, जैसे एक पानी में आपने कॉपर सल्फेट डाल दिया. कॉपर सल्फेट आपका ब्लू कलर का होता है. ठीक है? आप इसको स्टर मत करो, थोड़ी देर बाद देखो ये नीला होना शुरू हो जाएगा. तो कॉपर सल्फेट क्या है आपका, सॉलिड है. पानी क्या है आपका, लिक्विड. तो डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड. ओके, पर इसमें टाइम लगेगा. ओके, ये आपका एक सिलेंडर है, इसके अंदर ना ब्रोमीन गैस है. ये जो ब्राउन वेपर्स आपको दिख रहे हैं ये ब्रोमीन गैस है, और ऊपर इसके एक उल्टा करके एक और सिलेंडर रख दिया है खाली. अभी ये गैस यहीं पर है, इसके पार्टिकल यहीं पर है. थोड़ी देर बाद आप देखो ये जो सिलेंडर है पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, जो खाली सिलेंडर है ये भी ब्राउन हो जाएगा. मतलब ब्रोमीन के जो वेपर्स हैं इस सिलेंडर के अंदर भी चले गए हैं, डिफ्यूज हो गए हैं. तो ये किसका एग्जाम्पल है, डिफ्यूजन ऑफ गैस इन गैस. इस खाली सिलेंडर के अंदर क्या थी, एयर थी ना. ठीक है? तो उसके साथ मिक्स हो गया ब्रोमीन गैस, और ये बहुत जल्दी हो जाता है. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, एक बीकर ले लो, बीकर के अंदर पानी रख दो, और उसके ऊपर आप क्या डाल दो, 2 ड्रॉप ब्लैक इंक के डाल दो. थोड़ी देर बाद आप देखोगे ये हो जाएगा कलर बीकर का, और थोड़ी देर बाद ऐसा हो जाएगा. तो इससे क्या पता लग रहा है, इंक भी लिक्विड है और आपका पानी भी लिक्विड है. तो डिफ्यूजन इन लिक्विड. तो अभी मैंने आपको रेट बताया था कि सबसे ज्यादा रेट किस में होगा, सबसे ज्यादा रेट होगा आपका ये वाले में, इसमें. उसके बाद होगा आपका लिक्विड इन लिक्विड में, उसके बाद होगा सॉलिड इन लिक्विड में. तो ये अगर ए है, ये अगर बी है, ये अगर सी है, तो अगर मुझे इसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन के जैसे लिखना है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ए में सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद होगा सी में, और उसके बाद होगा बी में. बिकॉज ए में क्या है, गैस है, सी में क्या है, लिक्विड है, बी में क्या है, सॉलिड और लिक्विड है.
तो सबसे ज्यादा किसमें होता है? गैस में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद सॉलिड में. अंडरस्टैंड? सो दिस शुड बी क्लियर इन योर माइंड. नाउ यही मैंने आपको बताया था, द स्मेल ऑफ फूड बीइंग कुक्ड इन द किचन रीचेस अस इवन फ्रॉम अ कंसिडरेबल डिस्टेंस. इसका मतलब डिफ्यूजन डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर. टेम्परेचर इंक्रीजेस, रेट ऑफ डिफ्यूजन increases. So that's all for the first part of this chapter. We have learned about the characteristics of the particle, what is matter, what is not, and diffusion, and on what factors diffusion depend. Diffusion depend upon two factors. First is state of matter, second is temperature. Understand? So lastly, I would like to give you 10 questions as an assignment. This you should do, okay, and check your knowledge. Understand? Thank you.